already discussed about acid, base and salts, which is your chapter number 2. Students, we have covered almost the topics. What is acid, what is base, and by the written notes I have given you additional notes which are supporting to read and understanding your textbook contents. I have explained already, that is page number 19, how acid and base react with metals, and on your page number 20 it has been given how metal carbonates and hydrogen carbonates reacts with acids, and for page number 21 how do acid and base react with each other, and we have covered reaction of metallic oxides with acids which are basic in nature, and we have covered non-metallic oxides which are acidic in nature. So students, we have covered almost the topics, and we have already covered the exercise, solved exercise. I have given to you the solution of exercise which is given on your page number 25. Why every liquid has to be acid, basic or neutral in nature, we have covered this one also. We know that hydrogen is omnipotent in decreasing the nature of the substance. We also know that the hydrogen ion that is unstable and it add in water molecules and become hydronium ion. So all these things we have covered. Today we are going to take this topic, that is page number 25. The topic is how strong are acid or base solution. Students, if we read this, we will get how we identify the concentration of acidic solution or base solution. Here it is written, we have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen ion and hydroxyl ions in solutions. Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? We can do this by making use of a universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors of different concentrations of hydrogen ions in a solution. Students, we have discussed about natural indicators, synthetic indicators. Here we are taking universal indicator. Universal indicator is here. Scale has been given here. See students, in next page, this is the pH scale. pH scale में 1 से लगाकर 14 तक नंबर होते हैं. See here, 0 to 14, 0 से 7, 7 से 14. 7 नंबर आप देख रहे हैं. 7 नंबर green in color, and after this it will become bluish, and in 14 number dark blue color. Or here if we see in this order 0 to 7, on the 0 it is red in color, and after gradually it will become fade, and on 7 green in color. It is a pH paper. Students, two things are there, pH paper and pH scale. pH, P small and capital H. See here. See here, P small and capital H. P means potence, H means hydrogen ion. Hydrogen ion का potential, potence means potential of hydrogen ion. किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं या किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, इसका पता लगाने के लिए पीएच पेपर या पीएच स्केल का यूज़ करते हैं. सी हियर,
स्टूडेंट्स? अगर पीएच पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और अगर वो पीएच पेपर ब्लू कलर का हो जाता है तो इट मीन्स सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। और अगर उस पीएच को हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसका कलर डार्क रेड होगा, इट मीन्स एसिडिक इन नेचर। 0 से लगाकर 7 तक का जो स्केल है वो एसिड नेचर दिखाता है और 7 के बाद 14 तक का जो स्केल है वो बेसिक नेचर या एल्केलाइन नेचर दिखाता है। 7 को न्यूट्रल मानते हैं। हियर इट हैज़ रिटन सी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टमक में होता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेमन जूस that much not strong. Lemon juice is strong but less than gastric juice. और जब जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स पर आते हैं, जैसे जैसे हम पॉइंट 3 पर आएंगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। पॉइंट 4 पर और भी कम होगा, पॉइंट 5 पर और भी कम होगा, 6 पर और भी कम होगा। इस तरह से अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन आयन अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं तो एसिडिक नेचर होता जाएगा, और अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन उतने नहीं हैं तो बेसिक नेचर होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में ग्रीन कलर पीएच शो करता है, इट मीन्स वो न्यूट्रल है। प्योर वाटर और ब्लड, ये इसका पीएच 7.4 होता है, ये न्यूट्रल कहलाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10 होता है पीएच वैल्यू, ये एल्कलाइन नेचर की होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू 14 होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीएच पेपर। इसी तरह से एक पीएच स्केल भी होता है जो आपके प्रीवियस पेज पर दिया है। इसमें भी 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक। हियर एसिडिक नेचर, हियर बेसिक नेचर। तो लाइकवाइज स्टूडेंट्स, ये पीएच स्केल है और एक पीएच इंडिकेटर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है, जो बहुत सारे सॉल्यूशन से मिलकर बनता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सी नंबर 1, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच की क्या वैल्यू है देखेंगे हम। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन survive only in a narrow range of pH change. When pH of rain water is less than 5.6, अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है, it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारी रेन में जब मिल जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड के का जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 5.6 से कम हो जाता है एसिड रेन का, तब अगर वो रिवर में एसिड रेन मिल जाती है तो वहाँ पर उसका पीएच कम हो जाता है और हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका सर्वाइविंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट मीन्स हमारी बॉडी 7.0 और 7.8 के बीच में हमारा पीएच वैल्यू होना चाहिए। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा सेकंड, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? सॉइल का पीएच भी किसानों को पता होता है कि सॉइल का पीएच कैसे बैलेंस करना है। अगर पीएच में कुछ गड़बड़ होती है तो किसान उस पीएच को बैलेंस करने के लिए 1 साल के लिए या एक क्रॉप नहीं लेते हैं, उस खेत को खाली छोड़ देते हैं। कभी कभी फर्टिलाइजर्स के थ्रू या कोई पेस्टिसाइड्स के थ्रू भी पीएच को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ आपके इस बॉक्स में दिया है एसिड इन अदर प्लैनेट्स। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? क्या इस प्लैनेट पर लाइफ संभव है? नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, येलोइश क्लाउड होंगे, वहाँ कैसे सर्वाइव होगा। यहाँ एक एक्टिविटी दी है, इसको आप पढ़ेंगे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस स्ट्रॉन्ग एसिड
अगर हमारे डाइजेशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी फॉर्मेशन होती है. See here, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During the indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called milk antacid. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड का यूज़ क्या होता है. आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है कि एंटासिड क्यों लिया जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. हमारे दांतों में अगर कुछ शुगर या फूड जब रह जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं. वो बैक्टीरिया शुगर और फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारा जो एनिमल पार्ट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है और टूथ डिके होने लगता है. तो इस तरह से हम पीएच को बैलेंस रखने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो एक बेसिक नेचर का होता है. नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. स्टूडेंट्स, हैव यू एवर बीन स्टंग? Students, have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung areas gives relief. Stinking hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. Students, अगर कभी हमें कोई मधुमक्खी काट लेती है तो हमें जलन होती है. फिर उस जलन को दूर करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा जो हमारे खाने का डब्बे में होता है, उसको हम लगा लेने से हमें रिलीफ होता है. कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं गाजर घास हो जाती है, उस घास को छूने से भी हमें कुछ जलन या इरिटेशन होता है. वो मेथनोइक एसिड के कारण होता है. जो नेटल लीव्स हैं, ये नेटल लीव्स वाइडली ग्रो कर जाती हैं, जिनको छूने से हमें इरिटेशन होता है. इसी के साइड बाय साइड भी एक और लीव्स होती है, उसको हम डॉक लीव्स कहते हैं. अगर वो डॉक लीव्स अगर हम उसके ऊपर रब कर लेते हैं तो जो नेटल लीव्स से जो बर्निंग होती है वो ठीक हो जाती है. हियर इट हैज़ रिटन, नेचर प्रोवाइड्स नेचुरलाइजेशन ऑप्शंस. सी हियर, नेटल इज़ ए herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dock plant. Dock plant भी उसके side by side grow करता है, which often grows beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dock plant? So next time you know what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such stings? So students, pH का हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह से हमने उपयोग देखा, pH वैल्यू क्या होती है, pH स्केल क्या होती है, और हर एसिड का, हर जूस का pH अलग अलग होता है. pH की एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसमें pH वैल्यू दी गई. यहाँ देखिए किस किस सोर्स में कैसा एसिड होता है. हियर विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, और टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, एंड टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड. कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मैथनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग मैथनोइक एसिड. स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक we have covered
all the topics of your chapter. Here some questionnaires are here. Try to solve this. I will provide the answer in next video. Thank you.